Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you all here in this webinar session being conducted by TNV Academy. It gives me immense pleasure to introduce our guest speaker for today's webinar, Mr. Sunil Kumar. In this webinar today, Mr. Sunil Kumar will discuss about what are prerequisite programs, which is an essential requirement of ISO 22000 standard. Our distinguished speaker, Mr. Sunil Kumar, has done his master's in microbiology. He is also a lead auditor in ISO 9001, FSSC 22000, and ISO 22000 standards, respectively. Mr. Sunil Kumar has audited several organizations for FSSC 22000 and ISO 22000 standards and has helped several others for their implementation. He has an industrial experience of around 10 plus years in field of food technology, food processing, and in auditing of food related industries. He has been imparting training to a number of organizations, entrepreneurs, and individuals on various topics related to ISO terminologies and their certification and implementation. It was just a brief introduction of our guest speaker today. And now, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Sunil Kumar. I may request Mr. Sunil Kumar now to please take over and start the webinar. Okay, thanks Vipul and the whole TNV Academy team for creating such a wonderful session on the different food industry, on sessions on food safety, food management system, quality assurance, quality control, allergen management, and further so far different webinars. So today we will discuss on introduction to PRP. PRP are the prerequisite program that are used in the food industries, and these are the basic hygiene conditions which are required for every food chain to produce the safe food for the human consumption. So in this prerequisite program, there is an introduction part where we will learn about the different stages of the PRPs and their requirement. So here to start, PRP is the foundation of HACCP program. It includes GMP. It helps us address food safety at all stages from receiving to shipping. Prior to developing HACCP plan, the company shall develop and implement pre-reviewed program to assist in controlling the likelihood of introducing food safety hazard to the product, like through the work environment and operational practices. The prerequisite program shall be documented, updated whenever there are changes associated with the prerequisite program, and reassessed at least annually. So first part क्या है ना, is the foundation of HACCP program. PRP is actually क्या है, HACCP program की एक foundation है. We can say that एक इसका एक foundation program होता है एक HACCP plan का. किसी भी इंडस्ट्री में HACCP plan रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें इनिशियली जो है जो फर्स्ट कंट्रोल है थ्रू द PRP होता है. PRP actually prerequisite program that is a basic hygiene condition required for the each food industry to develop a safe food. So its second part include GMP. GMP mean good manufacturing practices. So PRP के अंडर ही एक GMP पार्ट आता है. GMP इंक्लूडिंग आपका प्रोडक्शन एरिया, प्रोसेस एरिया जो होता है, प्लस आपका चेंज रूम होता है, चेंज रूम फैसिलिटीज रहती है, और जहाँ पे आपका प्रोडक्ट सेकेंड आपका जो प्रोसेस पार्ट है जहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड होता है. So that include comes under the PRPs. And PRP है जो हमें हेल्प आउट करती है थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ फूड सेफ्टी, रिसीविंग टू ट्रांसपोर्टेशन लाइक डिस्पैच. हम रॉ मटेरियल से लेके डिस्पैच तक का सभी प्रोसेस के अंदर PRP इन्वॉल्व होती है. And the third one is prior to developing HACCP plan, the company shall undergo development and implement pre-requisite program. So जब भी हमें HACCP plan डेवलप करना, तो उससे पहले हमें PRP प्लांट में इन्वॉल्व करनी पड़ती है. इन PRP के थ्रू ही हम डिफरेंट टाइप ऑफ हजार्ड कंट्रोल करते हैं, जैसे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल. So further we will also assess the OPRP and CCP. So उससे पहले हमारा जो कंट्रोल है that is through the PRP. So इसमें क्या आपका सारा वर्क एनवायरनमेंट, आपका ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस, वर्क एनवायरनमेंट लाइक आपका इंफ्रा, आपका फ्लोर एरिया, आपकी यूटिलिटी, आपका हाइजीन, इक्विपमेंट हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, एंड ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस में आपका इक्विपमेंट आ जाते हैं, इक्विपमेंट का कंट्रोल आ जाता है, इक्विपमेंट की क्लीनिंग आ जाती है, SSOP आ जाती है, सैनिटाइजेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आ जाते हैं. द प्री-रिक्विजिट प्रोग्राम शैल बी डॉक्यूमेंटेड, अपडेटेड व्हेनेवर देयर आर चेंजेस. सो जो भी आपकी PRPs होती हैं, ये हमें डॉक्यूमेंटेड करनी पड़ती है. तो कोई भी अगर इन केस ऑफ हम चेंज करते हैं PRPs में,
लाइक हमने फॉर एग्जांपल हमने क्लीनिंग का पीआरपी, क्लीनिंग के अंदर 2-3 प्रोसेस इन्वॉल्व करवाए, और हमें सेकंड अभी एक और प्रोसेस भी क्लीनिंग के अंदर इंक्लूड करवाना है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा उसमें। तो जब भी हम चेंजेस करेंगे या जब भी कोई चेंज इन्वॉल्व होगी पीआरपी के अंदर, तो हमें उनको एटलीस्ट ईयरली, एनुअली रिव्यू करना ही करना है उसको। उसका डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया है उसको चेंज करना तो चेंज करना पड़ेगा। अगर सेम है दैट इज विल बी सेम फॉर दी होल ईयर्स एंड नेक्स्ट ईयर। अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो वो हमें डॉक्यूमेंट चेंज भी करना पड़ेगा। Then in the prerequisite program, there are the 7 prerequisite program. First is premises, then second transportation, like including the purchasing, receiving, shipping and storage. Third is equipment. Fourth is personnel. Fifth is sanitation and pest control. Sixth is recall. Then seven is operational prerequisite program. Each prerequisite program is divided into elements, sub-elements and bullets which include the requirement. तो ये सारे जो 7 क्लोज है दैट इज कम अंडर पीआरपी। तो इसके लाइक जैसे फर्स्ट आपका क्लोज है पीआर प्रीमाइसिस, तो प्रीमाइसिस के अंदर डिफरेंट डिटेल्स होती है कि आपका प्रीमाइसिस का लोकेशन या कैसा होना चाहिए, प्रीमाइसिस के अंदर जो वॉल्स एंड एरिया कैसे आपको उसका क्लीनिंग करना है, कैसे आपको उसको मेंटेन करके रखना है थ्रू आउट द रिसीविंग ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल। तो इसी तरह ये 7 जो आपके पीआरपीज हैं उसमें उसके अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा कि किस किस क्लॉज में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो द फर्स्ट वन इज प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस आगे फर्दर डिवाइड हुआ 4 पार्ट्स में। वन इज आउटसाइड बाउंड्री, लाइक आउटसाइड प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग फैसिलिटी, बिल्डिंग डिजाइन, construction and maintenance, lighting, ventilation, waste and edible food waste disposal, employee facility, washroom, hand washing station and sanitizing installation, water, steam, ice quality, protection and supply। तो प्रोमाइसिस के अंदर जैसे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन दी हुई है, जैसे फर्स्ट आपका है आउटसाइड प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग फैसिलिटी। तो जहाँ पे भी आपका प्लांट या आपका प्रोमाइसिस है दैट शुड बी अपार्ट फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। और इसमें हमें जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वी हैव टू फॉलो दैट। जो भी हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिक्वायरमेंट है वी हैव टू फॉलो दैट। ताकि कोई भी ऐसे हमारे प्रोडक्ट के थ्रू किसी आउटसाइड या रेजिडेंशियल एरिया या रेजिडेंस अपार्ट फ्रॉम दी रेजिडेंस एरिया जो लोकेशन जहाँ पे आपकी होती है परमाइसिस की, तो वहाँ पे किसी को कोई नुकसान ना हो। सो दैट्स वाई वहाँ पे एक आउटसाइड प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग फैसिलिटी की प्रॉपर क्लॉज है। वहाँ पे आपको जो आपका एरिया है दैट शुड बी अपार्ट फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया। देन बिल्डिंग डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। तो जो भी आपका बिल्डिंग एंड डिजाइन है दैट शुड बी लाइक दैट, दैट शुड बी इजी टू क्लीन। आपका जो भी वॉल्स हैं या जो भी आपका फ्लोर एरिया है वो दैट शुड बी इजी टू असेसेबल टू क्लीन एंड मेंटेन। ऐसा नहीं आपकी एरिया अपना ऐसा बना दो कि इसमें आपकी क्लीनिंग की फैसिलिटी ना हो, आपकी ड्रेनेज की फैसिलिटी ना हो। तो उसमें क्या होगा, जो भी आपकी ड्रेनेज हो ड्रेन होगा, जो भी आपका वेस्ट मटीरियल होगा वहीं पे अकोमोडेट हो जाएगा, जिससे प्रोडक्ट की क्रॉस कंटामिनेशन हो सकती है। तो दैट्स वाई दे आर बिल्डिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस पार्ट इनटू द प्री बिल्ड प्रोग्राम। कि आपका बिल्डिंग का डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो आपको इजी टू असेस हो एंड इजी टू क्लीनेबल हो। एंड थर्ड इज लाइटनिंग। तो लाइटनिंग है वो विद इन द रिक्वायर्ड लग्जरेंट के ऊपर होनी चाहिए, लाइक 300 to 500 लग्जरेंट के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि अगर इससे कम होती है तो जो भी आपका प्रोमाइसिस एरिया होगा या फूड प्रोडक्शन एरिया होगा वहाँ पे उनको इजी टू भी नहीं हो पाएगा। जो भी वर्कर होगा या जो भी ऑफिस के स्टाफ होगा वहाँ पे उनको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट की जो लाइक व्यू है वो ढंग से नहीं हो पाएगा अगर प्रॉपर लाइटनिंग नहीं होगी तो। एंड फोर्थ इज वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का एक प्रॉपर असेस होना चाहिए। एक जैसे एच सिस्टम है, एयर हैंडलिंग यूनिट्स होते हैं, तो एरियाज में सर्वाइसिस के अंदर जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ पे प्रॉपर उसकी एयर की वेंटिलेशन होनी चाहिए थ्रू द AHU जो आपके एयर हैंडलिंग यूनिट होते हैं, ताकि आपको जो तो आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई कंटेमिनेटेड एयर ना आ सके। एंड फोर्थ इज द दैट वेस्ट एंड इनपेरेबल फूड वेस्ट डिस्पोजल। तो जो भी आपके प्रोडक्ट के थ्रू फूड वेस्ट होगा या कुछ भी वेस्ट निकलेगा उसका प्रॉपर एक डिस्पोजल प्रोसीजर होना चाहिए। लाइक ऐसे नहीं कि आप कुछ भी वेस्ट डाल के उसको आप थ्रो आउट कर सकते हो प्रोमाइसिस के बाहर। क्योंकि वो अगर वेस्ट आप ऐसे बाहर फेंकोगे तो दैट कैन कंटेमिनेट द एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो उसकी वजह से आपको जो वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉपर एक प्रोसीजर होना चाहिए।
द कंसर्न पार्टी होना चाहिए, थर्ड पार्टी करवा रहे हो या एक्सटर्नल सर्विसेज करवा रहे हो, लाइक एमसीडी से अपना वेस्ट प्रोडक्ट करवा रहे हो। लाइक जैसे बायोजार्ड वेस्ट है तो बायोजार्ड वेस्ट के लिए अलग सर्विसेज होती है, बायोमेडिकल केयर के जो वेस्ट जाता है, तो दैट शुड बी a proper procedure of that material, your waste material. And the fifth is employee facility and washroom. So proper employee facility and washroom available होना चाहिए as per the FSSAI. Per 25% one toilet should be available at the premises in in the plant, your plant, apart from the production area. Yes. So जो आपकी वॉशरूम फैसिलिटी है वहाँ पे प्रॉपर शॉप एंड हैंड स्टेशन इंस्टॉल होने चाहिए, बिफोर जब भी आप जीएमपी एंट्रेंस एरिया के अंदर आओगे तो वहाँ पे देयर शुड बी हैंड वॉश स्टेशन एंड ऑल्सो अवेलेबल ऑफ सैनिटाइजर। तो वो हैंड वॉश करने के बाद शॉप के साथ जब आप उसको विजिट करोगे देन दिस शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ सैनिटाइजर। तो हर जगह पे सैनिटाइजर इंस्टॉल होने चाहिए जो भी आपके हैंड वॉश स्टेशन होगी। देन वाटर स्टीम आइस क्वालिटी प्रोटेक्शन सप्लाई। So water steam and जो आपकी ice quality in case of you're using ice into your product or you're using water or steam, so जो that should be portable, वो portable अगर water use करें तो that should be portable according to the 10-500, 10-500 2012 के 18 के अकॉर्डिंग आपकी वो पोर्टेबल होनी चाहिए वाटर क्वालिटी, और एक्सटर्नल एजेंसी से टेस्टेड भी होनी चाहिए। तो ये था अबाउट द परमाइसेस। तो दिस वाज वन ऑफ द क्लॉज ऑफ 7 क्लॉज ऑफ पीआरपी। So second is the transportation, purchasing and saving, shipping and storage. So they include food carriers, temperature control of storage area, purchasing and saving, shipping, finished product storage, adequate ventilated area for storage. So जैसे भी फूड कैरियर लाइक कोई ट्रक है, कंटेनर है, कार्गोज है, तो उन सब का जो है आपका व्हीकल इंस्पेक्शन होना चाहिए, लाइक फॉर देयर क्लीनिंग एंड इंसेक्ट और डेड इंसेक्ट लिविंग any of the like foreign matter, there should be vehicle inspection for that. तो सेकंड टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ स्टोरेज एरिया, इन केस ऑफ जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट स्टोर हो रहा है, अगर वो कोल्ड स्टोर है तो वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज पे टेम्परेचर अवेलेबल होना चाहिए, अगर वो एम्बिएंट है तो वहाँ पे भी आपका इंस्पेक्शन, आपकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए भाई, ये आपको इतने टाइम पे चेक करना है, ये 4 घंटे बाद चेक करना है या 8 घंटे बाद चेक करना है, तो आपका टेम्परेचर कंट्रोल वहाँ पे होना चाहिए। परचेजिंग सेविंग शिपिंग, जो भी आपका परचेज है या आप रिसीव कर रहे हो, आर सेविंग कर रहे हो, एफडी शिपिंग कर रहे हो, तो उसकी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होनी चाहिए। रिसीविंग इंस्पेक्शन चेकलिस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन चेकलिस्ट होती है, दैट शुड बी अवेलेबल। देन फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज, आपका जो भी एफजी है, जैसे आप उसको स्टोर कर रहे हो, उसकी फीको कैसे मेंटेन कर रहे हो, तो दैट इज कम अंडर योर परचेजिंग सेविंग एंड स्टोरेज। और एडिक्वेट वेंटिलेटेड एरिया फॉर स्टोरेज, एडिक्वेट वेंटिलेशन होनी चाहिए उस एरिया के अंदर जहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट स्टोर है। देन थर्ड इज इक्विपमेंट डिजाइन, कंस्ट्रक्टेड इंस्टॉलेशन, नॉन टॉक्सिक मटेरियल, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन एंड प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्रोग्राम। तो इक्विपमेंट में डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन, सो आपका जो भी इक्विपमेंट है उसका डिजाइन दैट इज इजी टू असेस एंड इजी टू क्लीनेबल होना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन के टाइम आपका IQ, PQ, DQ, and OQ should be available, like installation qualification, performance qualification, design qualification. So that should be available. And non-toxic material, ऐसा नहीं कि आपका जो equipment है that should be giving a toxic material existent into your product. तो उसमें भी क्या है, आपकी क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। देन थर्ड इज इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन। तो जो भी आपका इक्विपमेंट है दैट इज यूज इन द प्रोडक्शन एरिया, प्रोसेस एरिया, वहाँ पे आपका प्रॉपर मेंटेनेंस का प्लान होना चाहिए आपके पास, उसकी ईयरली या 6 जो भी आपकी एक्सपेंसिव बेस्ड है उसकी कैलिब्रेशन अवेलेबल होनी चाहिए। देन द प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्रोग्राम, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल होना चाहिए। कैसा नहीं है कि आपका इक्विपमेंट चल रहा है कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो तो उसकी आप मेंटेनेंस कब करते हो, जब वो ठीक हो जाता है, जब मीन जब वो खराब हो जाता है तब आप उसकी मेंटेनेंस करते हो, तो आपके पास प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्रोग्राम भी होना चाहिए। तो मतलब क्या है, खराब होने से पहले भी उसको रूटीन या फ्रीक्वेंसी बेस्ड चेक करते रहो। Then the fourth is personal. Personal include the general hygiene training program, technical training program, general food hygiene program, CGMP training and also training. So first part is general food hygiene training program. So general hygiene food programming training program में क्या होता है कि
नॉर्मल जो आपका लाइक पर्सनल हाइजीन होती है एक इंडिविजुअल की, वो कैसे अपने आप को हेल्दी और यू कैन से दैट हाइजीनिक रखता है। मीन उसकी ड्रेस, उसके नेल्स, उसके हैंड, उसके जो हेड और मास्क जो फेस है दैट शुड बी कवर्ड। उस पे हेयर नेट, मास्क एंड कैप होनी चाहिए। इफ ही इज ए फूड हैंडलर तो वहाँ पे उसके पास उसके ग्लव्स अवेलेबल होने चाहिए, ताकि कोई प्रोडक्ट के साथ क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो सके। एंड सेकेंड है टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उनको टेक्निकली ट्रेनिंग भी देनी है, लाइक फूड सेफ्टी के ऊपर, हाइजीन के ऊपर, जीएमपी के ऊपर, पर्सनल हाइजीन, इक्विपमेंट हाइजीन, तो उसके ऊपर भी आपको उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देनी है। एंड द CGMP ट्रेनिंग वही दैट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ट्रेनिंग एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग। So personal hygiene is a major role of the individual into the food handling unit. तो जहाँ पे क्या है, जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है फूड हैंडलर का, वहाँ पे दैट इज प्लेइंग ए मेजर रोल। तो वहाँ पे एवरी इंडिविजुअल है, तो उनकी क्या है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए अबाउट दी प्रोडक्ट हाइजीन, फूड सेफ्टी, इक्विपमेंट हाइजीन, फ्लोर एरिया हाइजीन। तो उनको ये सब ट्रेनिंग अवेलेबल होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज सैनिटाइजेशन एंड पेस्ट कंट्रोल। So sanitation program include equipment and utensils, floor, locker rooms, lunchroom, washroom, and the pest control program include chemical required for the effective implementation of pest control program. So in sanitation program, we will start with the equipment and utensils. तो जो भी आपके इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स है वो क्लीन होने चाहिए। इक्विपमेंट जो भी आपके प्रोसेस के अंदर यूज हो रहे हैं वो इक्विपमेंट जो है हार्डली एंड टू एंड क्लीन होने चाहिए, ताकि कोई भी प्रोडक्ट की क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो सके। अगर वो इनक्लीन है, अनक्लीन पड़ा है, तो उसकी प्रोडक्ट की उसके साथ क्रॉस कंटेमिनेशन होने के साथ जो प्रोडक्ट है वो हमारा फेल हो सकता है। लाइक डिफरेंट पैरामीटर टेस्ट पे हो सकता है, सेंसरी पे हो सकता है, उसका माइक्रोबायोलॉजी का पैरामीटर फेल हो सकता है, केमिकल फेल हो सकता है। अगर कोई ऐसा पैरामीटर फेल होता है, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चला जाता है, तो दैट मे कॉज इम्पेक्टेड है ऑन दी ह्यूमन हेल्थ। तो इसलिए आपका इक्विपमेंट यूटेंसिल्स है वो क्लीन होने चाहिए। आपका सैनिटाइजेशन प्रोग्राम होना चाहिए कि कैसे उसका क्लीनिंग आप करोगे मंथली, चाहे क्वार्टरली, 6 मंथली या ईयरली, जो भी आपका प्लान होगा इक्विपमेंट आपके रिस्क के अकॉर्डिंग। तो every equipment and utensil should be clean and they having a sanitization and cleaning program, जिनको कि हम SSOP बोलते हैं, सैनिटाइजेशन एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स ऑफ CIP क्लीनिंग की जाती है। we say that the CIP of the cleaning process, the cleaning in process। तो CIP में आपका क्या होता है, क्लीनिंग में, लाइक क्लीनिंग में क्या होता है आपका वाटर फ्लशिंग हो जाता है, आप प्लास्टिक के साथ करते हो, नाइट्रिक एसिड के साथ करते हो, आप हॉट वाटर के साथ करते हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीनिंग इन्वॉल्व इन टू द प्रोडक्शन एरिया और प्रोसेस एरिया। तो दैट इज डिपेंड अपॉन द रिस्क, आपके प्रोडक्ट का कैसा रिस्क है, कितना रिस्क है, कितना उसके अंदर आ जा रहा है। एंड सेकेंड इज फ्लोर। जो फ्लोर है, फ्लोर क्लीन होना चाहिए, इवन वो डेली है या 6 आवरली है, 8 आवरली है, दैट इज ऑल्सो ऑन फ्रिक्वेंसी बेस्ड। तो फ्लोर के लिए आपको बहुत से केमिकल भी यूज़ करने हैं, दैट इज शुड बी फूड ग्रेड। एंड थर्ड इज लॉकर रूम। लॉकर रूम भी क्लीन होने चाहिए। एंड लंच रूम एंड लॉकर रूम बोथ शुड बी क्लीन। एंड वॉशरूम, वॉशरूम पे डेली आपकी क्लीनिंग फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, उसमें इंक्लूडिंग योर सोप अवेलेबल होना चाहिए। So that is the sanitization process of the equipment and the equipment and the change room facilities and the workers change room and the locker room. The second is the pest control program. Pest control program actually क्या, that is involved to control the pest into your process area or into your product. So chemical required for the effective implementation pest control program. सो इसमें क्या है कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल आप यूज़ करते हो टू कंट्रोल द इंसेक्ट्स। तो जिसमें कि आपके जैसे डेल्टामेथ्रिन है, जो कि आप आउटसाइड द प्रेमाइसिस स्प्रे करते हो। और जो लाइक कॉकरोच या अदर इंसेक्ट्स होते हैं उसके लिए आप, दैट इज यू आर यूजिंग द ग्लू ट्रैप, जो कि शिपली होती है, ऐसे होती है, आप ग्लू ट्रैप यूज़ करते हैं। और कोई भी अगर रैट है या इस तरह के इंसेक्ट, उसके लिए आप रोडेंट ट्रैप यूज़ करते हैं, जिसको रोडेंट बॉक्स एक बोलते हैं। सिर्फ डिफरेंट केमिकल यूज़ किए जाते हैं पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम।
The next is the recall. So recall plan include the product coding and labeling, identify all product to be recalled, procedure for testing the recall plan, finished product are properly and legibly coded. सो रिकॉल प्लान क्या होता है कि जैसे भी आपके प्रोडक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल कोई ऐसे फेलियर आ जाता है या उसमें कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि उसमें पैरामीटर्स जो है दैट इज अबव द स्पेसिफिकेशन लिमिट, और कोई ऐसे है कि वो प्रोडक्ट दैट इज नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन एंड यू हैव टू रिकॉल दैट। सो आपके पास वो रिकॉल प्लान का डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर होना चाहिए एंड आपको रिकॉल मॉक रिकॉल भी करनी होती है प्लांट के अंदर। तो रिकॉल प्लान में आपका क्या होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, इन केस वो कभी फेल हो जाते तो आप कैसे उसको रिकॉल करोगे, कैसे आप जैसे मार्केट में चला गया या आपके आई एम गिविंग जैसे एग्जांपल ऑफ दैट, अगर आप मार्केट में चला गया या आपको डिस्ट्रीब्यूटर एंड में चला गया तो आपको कैसे उसको रिकॉल करोगे। तो उसके लिए आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर कोडिंग करोगे, लेबलिंग करोगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है उस पर लेबलिंग एज पर एफएसएसआई आपकी होती है जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। इंटरनली भी आप अपने लाइक रॉ मटेरियल के अंदर एक लेबलिंग करके रखोगे, फिर पैकिंग मटेरियल के अंदर लेबलिंग करके रखोगे, हाँ जी इस प्रोडक्ट के अंदर ये पैक मटेरियल यूज़ हुआ था, इस प्रोडक्ट के अंदर ये रॉ मटेरियल यूज़ हुआ था, ताकि वो आपको इजी टू असेस हो जाए। अब फॉर एग्जांपल कोई बैच एक्स वाई जेड बैच फेल होता है, एक्स वाई जेड कंसाइनमेंट फेल हो जाती है, आपको रिकॉल करना है, तो उसका आप प्रॉपर देखोगे कि वो कब वो प्रोडक्ट बना था, किस दिन में बना था, किस डेट में बना था, फिर कब उसकी टेस्टिंग हुई थी, कब उसकी एनालिसिस हुई थी, उसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज हुआ था। आपको सारे ही जो प्रोडक्ट है आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं उसमें क्या क्या यूज हुआ। तो आपको इसका प्रॉपर एक रिकॉल प्लान प्रोसीजर बनाना पड़ता है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को रिकॉल करोगे। तो इसलिए क्या है जो फिनिश गुड है दैट शुड बी दैट आर प्रॉपर्ली लेबल्ड एंड विजिबली कोडेड, सो दैट आपको जब भी आप प्रोडक्ट को रिकॉल करना पड़े तो आपको इजी टू असेस रहे, ताकि आप अपनी जो भी उसमें कोई फेलियर हुआ है कुछ हुआ आपको इजी टू असेस हो सके। देन इज ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम। सो ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम में एक एलर्जन कंट्रोल प्रोग्राम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलर्जन, फूड एडिटिव एंड न्यूट्रिएंट्स, फूड प्रोसेसिंग एड्स, foreign matter control program, then control of emerging including the special handling, segregate, special sanitization procedure, proper labeling. So operational prerequisite program क्या होते हैं, जो भी हम that is we are controlling the different type of hazard at the operational level, we can say that at the process level. तो जो PRP होती है that are include into your raw material saving, your raw material area, your storage, your transportation, regulating all of your steps of the supply chain, including the throughout the your process part. सो ऑपरेशन प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम में क्या आता है जी, आपकी इक्विपमेंट है लाइक आपका जो भी ऑपरेशन कंट्रोल है, जैसे आपका रॉ मटेरियल सीविंग होता है, आप जैसे इक्विपमेंट के थ्रू उसका लाइक प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर जो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पे जो आप कंट्रोल लगाते हो उन हजार को पर्टिकुलर हजार को कंट्रोल करने के लिए, दैट आर कॉल्ड ऑपरेशन प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम। तो ऑपरेशन प्रीवियस प्रोग्राम में फर्स्ट वन है एलर्जन कंट्रोल प्रोग्राम। तो एलर्जन कंट्रोल प्रोग्राम में क्या आता है कि आप अगर आप एलर्जन ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हो जिसके अंदर एलर्जन प्रेजेंट है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास एलर्जन कंट्रोल प्रोग्राम अवेलेबल होना चाहिए। एलर्जन कंट्रोल प्रोग्राम में क्या आता है कि कैसे आपके मान लो आपके किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एक्स वाई जेड एक पर्टिकुलर एलर्जन प्रेजेंट है, तो उस एलर्जन के लिए आप कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे आपने प्रोमाइसिस के अंदर एलर्जन कंट्रोल प्रोग्राम रखा हुआ है, प्रोग्राम बना रखा है, कैसे आपने उसके प्रोसीजर बना रखे हैं। तो क्योंकि आपके पास इन केस ऑफ नॉन एलर्जन भी है, एलर्जन भी है, और नॉन एलर्जन आप जब नॉन एलर्जन के बाद एलर्जन चलाओगे या एलर्जन के बाद नॉन एलर्जन चलाओगे तो कैसे कंट्रोल करोगे। तो जैसे आपकी क्लीनिंग मैट्रिक्स होगी, उसको आपको पहले एलर्जन चलेगा फिर नॉन एलर्जन चलेगा, तो एलर्जन के बाद आप प्रॉपर क्लीनिंग करोगे, उसकी सैम्पलिंग करोगे ताकि कोई एलर्जन की क्रॉस कंटामिनेशन चांसेस ना हो। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलर्जन, आप डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी आपके एलर्जन उनको आइडेंटिफाई करोगे, आपके कौन से प्रोडक्ट के अंदर कौन सा एलर्जन हो सकता है, आपके कौन से रॉ मटेरियल के अंदर कोई एलर्जन हो सकता है, यू विल आइडेंटिफाई दैट, आप रिस्क एनालिसिस करोगे उसका, क्योंकि जब भी आप हजार आइडेंटिफाई करते हो आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हो इसमें कौन सा कितना रिस्क हो सकता है, अगर इसमें एलर्जन है, इसमें बायोलॉजिकल है, इसमें फिजिकल है, इसमें केमिकल है, तो वो कितना एक हो सकता है, कितना उसका रिस्क है।
Then foreign matter control program. The food processing unit include all of your allergen and all of your the different type of hazards. तो फॉरेन मैटर कंट्रोल प्रोग्राम में क्या है कि आप कैसे फॉरेन मैटर कंट्रोल कर रहे हो। फॉरेन मैटर जैसे आपका डस्ट हो सकता है, डर्ट हो सकता है, या कोई भी यानी मेटल पार्टिकल हो सकता है, प्लास्टिक पार्टिकल हो सकता है, जो कि दैट इज अ फॉरेन प्रोडक्ट, फॉरेन मटेरियल फॉर योर प्रोडक्ट। तो इसके लिए आप कैसे कंट्रोल लगाते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास शुगर आता है, शुगर में हो सकता है कि आपके डर्ट आ जाए, शुगर के अंदर मेटल पीस आ जाए, शुगर के अंदर प्लास्टिक पीस आ जाए, थ्रेड आ जाए। तो कैसे आप कंट्रोल करते हो। दैट इज वोलूमेट्रिक कंट्रोल प्रोग्राम। तो उसके लिए आप डिफरेंट सीव लगा सकते हो, या मैश लगा सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, ताकि वो पार्टिकल है वो क्रॉस ना होके जाए थ्रू द रॉ मटेरियल शुगर। क्योंकि आप शुगर यूज़ करते जब आप उसको पास करोगे एक मिक्सर के थ्रू नेक्स्ट मिक्सर के अंदर, तो वो एक मिक्सर के बाद जब नेक्स्ट मिक्सर के अंदर जाएगा तो उस एक मिक्सर और दूसरे मिक्सर के बीच में आप एक फिल्टर लगाओगे, ताकि वो कोई भी अगर डस्ट या कोई प्लास्टिक या कोई भी ऐसा मेटल पीस है उसके अंदर ना जाए। तो उसके लिए आप कौन से प्रोग्राम लगाते हो। तो वो प्रोग्राम जो है मीन वो कंट्रोल जो है दैट आर कवर्ड योर ऑपरेशन पीरियड प्रोग्राम। क्योंकि आपने ऑपरेशन के अंदर कोई ऐसा कंट्रोल लगाया है, ऐसा आपने प्रोग्राम लगाया है जो आपके हजार को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दैट इज कम्स अंडर योर फॉरेन मैटर कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसी तरह ऑपरेशन पीरियड प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हम कंट्रोल लेयर लगाते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक प्लांट के अंदर अगर हीटिंग हो रही है, डबल हीटिंग है या ट्रिपल हीटिंग है, या वी कैन से दैट अगर हीटिंग उसका लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप में हम ऑलरेडी सीसीपी लेते हैं। तो उस सीसीपी के से पहले जैसे हम 2 बार और हीटिंग उसको कर चुके हैं, तो उस 2 बार की हीटिंग को हम ऑपरेशनल पीरियड प्रोग्राम ले सकते हैं, उसको हम एक एक स्टेप को ओपीआरपी बना सकते हैं। और जैसे हम पहला हमारा हमने शुगर को बनाया था, शुगर के लिए हमने फिल्टर इंस्टॉल किए थे, तो वो हमारी होगी फिल्टर जो हमने लगाए, दैट फिल्टर आर आवर ऑपरेशनल पीरियड प्रोग्राम। तो हमारा जो शुगर फिल्टर है जो फिल्टर कर रहा है शुगर मेटल को या यानी प्लास्टिक पीसेस को, तो वो एक आपका ऑपरेशन पीरियड प्रोग्राम है। तो नेक्स्ट उसी तरह ही आपका जो स्टेप होगा, जैसे कोई मिक्सर होगा, मिक्सिंग होगी वहाँ पे, तो मिक्सी के अंदर आप उस कैसे पर्टिकुलर डिजाइन करोगे आप स्टेप को। तो आप देखोगे कि मेरे इतने मिनट पे या इतनी आरपीएम पे मेरी मिक्सिंग होती है, तो वो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है। तो आप उस पर्टिकुलर स्टेप को भी ओपीआरपी ले सकते हो। तो अगर किसी स्टेप पे मिक्सिंग हो रही है, तो मिक्सिंग आपका एक ओपीआरपी हो जाएगा, मीन मिक्सिंग इज योर ओपीआरपी, क्योंकि मिक्सिंग आपका एक ऑपरेशनल कंट्रोल मेजर है। मीन अगर 10 मिनट मिक्सिंग करते हो, अगर 20 मिनट मिक्सिंग करते हो, या उसकी आरपीएम इतनी आरपीएम में मिक्सिंग करता हूँ या मिक्सिंग करती हूँ, तो मेरा एक कंट्रोल आ जाता है मेरा जो, क्योंकि मेरा प्रोसेस के अंदर उसको मैं मिक्स ही नहीं करता, तो वो उसका इंग्रेडिएंट है वो मिक्स नहीं होते। तो उसमें मेरा जो भी एक्स वाई जेड फैट कैल्शियम या कोई भी मेरा पैरामीटर हिंड्रेंस हो सकता है, अगर वो प्रॉपर मिक्स नहीं होगा। तो मिक्सिंग आप उसमें एक अपना ओपीआरपी डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट इज कम अंडर योर फॉरेन मटेरियल कंट्रोल प्रोग्राम। जो आपने फिल्टर लगाया है, जो आपने उसके लिए इंस्टॉल किए हैं, ताकि वो आपका कभी कोई भी प्लास्टिक हो, कोई भी मेटल पीस आ ना सके। तो दैट इज कम अंडर योर फॉरेन मैटर। वो भी फिल्टर हैं, सीव्स हैं, ये आपके फॉरेन मैटर कंट्रोल पे आते हैं। और कई जगह पे आपके जो मेटल डिटेक्टर भी यूज होते हैं, बट मेटल डिटेक्टर है वो लास्ट कंट्रोल होते हैं, इसके लिए वो सीसीबी डिफाइन होते हैं। देन कंट्रोल ऑफ एलर्जन। कंट्रोल ऑफ एलर्जन में आपका स्पेशल हैंडलिंग लाइक सेग्रीगेट, स्पेशल सेग्रीगेशन प्रोसीजर, प्रॉपर लेबलिंग। तो स्पेशल हैंडलिंग में क्या आ जाता है आपका, जैसे आपका एलर्जन है, आपको लेजर को बहुत प्रॉपरली हैंड करना डील करना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन या वैल्यू ज़्यादा ऐड होगी प्रोडक्ट के अंदर, तो वो क्या है आपके प्रोडक्ट को सब स्टैंडर्ड कर देती है। अगर एफएसएसए रेगुलेशन बोलती है कि हमें 10 mg या 10 ppm का ही लर्जन डालना है, और मतलब इससे ज़्यादा परमिसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को इम्पैक्ट कर सकता है या एलर्जिक कर सकता है। तो अगर आपने 10 ग्राम से ऊपर 20 ग्राम डाल दिया है, तो दैट योर मटेरियल शुड बी सब स्टैंडर्ड, और एफएसएसए की गेंस्ट स्टैंडर्ड की गेंस्ट होगा। कभी भी आपका सैंपल पिक होता है तो वो सब स्टैंडर्ड होगा। इसलिए आपका जो एलर्जन है उसके लिए आपको स्पेशल हैंडलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा कंसनट्रेशन में ज़्यादा अमाउंट में लगल जाए। 10 सेकेंड इज सेग्रीगेट। जो भी आपका मटेरियल बना है, जो भी आपका एलर्जन मटेरियल बना है और नॉन एलर्जन बना है, उन दोनों को हमेशा ही सेग्रीगेट रखूँगा, क्योंकि अगर बाई चांस या बाई मिस्टेक वो एक साथ हो जाता है, तो वहाँ पे उसकी जो प्रिंट है, जो उसकी वाइट जो बॉर्डर है उसके,
वो आपके नॉन लर्जिंग फूड में एडअप हो सकते हैं, जिससे कि आपकी हमारे फूड मटेरियल या हमारा जो प्रोडक्ट है उसके साथ क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है। कि जो भी आपका नॉन लर्जिंग फूड है, अगर नॉन लर्जिंग के थ्रू उसकी क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाती है, तो अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में जाता है तो वो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। ये जब भी कस्टमर खरीदेगा तो उसको लगेगा कि ये तो मीन इस फूड से तो मेरे को एलर्जी है और ये मैं खा रहा हूँ उसको लिखा, बट इसमें स्मेल आ, तो दैट मे कॉज ए क्रॉस कंटेमिनेशन। एंड स्पेशल सैनिटाइजेशन प्रोसीजर, और एलर्जिन के कंट्रोल के लिए स्पेशल सैनिटाइजेशन प्रोसीजर होने चाहिए। लाइक जैसे आपने मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि एलर्जिन के बाद नॉन एलर्जिन फूड बनेगा, तो उसके जब एलर्जिन फूड बनने के बाद प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होनी चाहिए, ताकि कोई भी उसका लेफ्ट आउट, कोई भी उसका रेजिड्यूज बचा ना हो प्रोसेस के अंदर, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर बच गया है तो वो आपके नॉन एलर्जिन फूड को कंटेमिनेट बना है, एलर्जिन फूड बना है, पर लेबलिंग होनी चाहिए कि परिपने मरीजों में व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द एलर्जी यू आर यूजिंग। कोई भी आप एलर्जन यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के अंदर, उसके ऊपर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए या एक के ऊपर चाहिए। तो जिसके थ्रू क्या है कि आपके जो आपके कस्टमर है दैट शुड बी अवेयर ऑफ योर इंग्रेडिएंट एंड न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, तो जो भी एफ एस एस आई कंप्लाइंस हुई है।